everybody, welcome back to the lecture of pharmacology by MKD. That's me, Dr. Mangesh Kumar Tripathi. So guys, in today's lecture we'll be starting with our next very important topic in pharmacology, and that is general anesthesia. Now what is general anesthesia, guys? General anesthesia is nothing but it is reversible loss of sensation as well as the consciousness. It is reversible loss of sensation as well as the consciousness. This is called as the general anesthesia. So in general anesthesia, guys, there will be a loss of sensation as well as the consciousness, and that will be reversible. ठीक है? Local anesthesia में, guys, there is no loss of consciousness because the drugs does not cross the, we can say, the blood brain barrier. It acts peripherally, but it will act on the central system in the brain, so it will cause the loss of consciousness. And the drug which will cause all these things, guys, जो drug ये cause करेगा, that is general anesthesia, they are called as the general anesthetic drug. So guys, क्या बोलते हैं उनको? The drug which causes these two things, that is reversible loss of sensation and consciousness, they are called as the general anesthetic drugs. Understood? Okay. ठीक है? Now guys, we understood what is the definition of general anesthesia as well as what is the definition of general anesthetic drug. Now this general anesthetic drug, actually they came into picture after 1846. So 1846 के बाद, that is after 1846, they came into the picture. But before 1846, भाई पहले भी operations होते होंगे, पहले भी surgeries होती होंगी, उसमें भी भाई pain बीन गायब करना रहेगा, तो there has to be something. So before 1846, guys, please remember, before 1846, अगर किसी को पेन सेंसेशन, जो सर्जिकल इंसिजन दिया गया है पेशेंट को, उसका पेन नहीं चाहिए किसी को. देखो मेन यही होता है ना भाई, बिना दर्द के ऑपरेशन हो जाए, हमारा मेन मोटिव तो वही रहता है ऑपरेशन का. तो सेम बिफोर 1846 द लॉस ऑफ, वी कैन से, द पेन सेंसेशन loss for surgical incision, ठीक है, it was due to, first, alcohol was used for this, guys. Alcohol was used before 1846 to have a loss of pain sensation. Second, opium was also used. Also, if there is some limb surgery, what was done? The limb was packed in the eyes. So limb packed in the eyes. And also, बहुत बार बहुत लोग ना, कुछ लोग they used to have the concussion. भाई एक हेड ब्लो दिया जाता था, भाई जोर से सर पे मार दिया जाता था, हेड ब्लो, सो पेशेंट क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस. सो दिस वाज आल्सो, गाइस, वन ऑफ द, वी कैन से, द सिस्टम और द मेथड टू हैव अ पेनलेस सर्जरी. उसके लिए we used to have all these things before 1846. But in 1846 there was a scientist called Dr. William Morton. He introduced the first anesthetic agent, and that is called as the ether. Please remember, in 1846 Dr. William Morton, he introduced the first general anesthetic agent which will cause the loss of consciousness slowly, as well as all the sensation will be lost, the pain sensation, and that is called as the ether. And for this, your William Morton, he is called as the father of anesthesia, because he was the one who introduced the general anesthetic drug first, that is ether, to the world. Hence he is called as the father of anesthesia. Now guys, in 1847, next one more general anesthetic was introduced, and that is called क्लोरोफॉर्म. भाई आपने मूवीज में देखा है, किसी को भी बेहोश करना है, किडनैप करना है, लूट मार करनी है, सो रुमाल में लगा के लिक्विड लगा दिया जाता है, एंड दैट लिक्विड, गाइस, इज कॉल्ड एज द क्लोरोफॉर्म. प्लीज रिमेंबर दिस. एंड मेनली इन 1956, it was in 1956 we have one of the very important general anesthetic drug which was introduced, and that is called as the halothane. ठीक है. सो आफ्टर दिस ओनली अदर विल बी, जो हम लोग आजकल यूज करते हैं, प्रोपोफॉल, कीटामीन, वो सब इनके बाद आया. आफ्टर 1956 यू कैन सी द डिफरेंस, ऑलमोस्ट 110 साल बाद आफ्टर द ईथर. So in 1956, halothane was introduced.
In 1846, the first general anesthetic, that is ether, was introduced by Dr. William Morton. In 1847, we had the chloroform, which was discovered or introduced. And for the discovery of ether, Dr. William Morton, he is called as the father of anesthesia. इतना समझ गया सबको? Okay. So guys, we know Dr. William Morton, he is called as the father of anesthesia. Now there is ether, actually ether इंट्रोड्यूस किया उसने, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एनेस्थीसिया. बस गाइस, ether इज वेरी स्लो एक्टिंग. आजकल बहुत यूज ही नहीं होता है बिकॉज इट इज वेरी स्लो एक्टिंग, इट इज लेस पोटेंट, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है. ठीक है, बहुत स्लो काम करता है, स्लो एक्टिंग है, उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है. नाउ वी हैव अ मॉडर्न एनेस्थेटिक एजेंट्स. सो जो इंट्रावेनस एजेंट्स हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, दे आर द मॉडर्न एनेस्थेटिक एजेंट एंड द फादर ऑफ मॉडर्न एनेस्थेटिक एजेंट. Or we can say the father of modern anesthesia is Long. And father of balanced anesthesia क्या है guys, ये बताता हूं मैं. Balanced anesthesia, Lundy and Water. So Lundy and Water, they are called as the father of balanced anesthesia. ठीक है guys, now balanced anesthesia हम लोग को क्या समझता है कि भाई एक ही anesthetic agent हमारा सारा दर्द मिटा दे. वो भाई जब अगर सर्जरी कर रहे हैं, एनेस्थेटाइज किया गया, बेहोश किया गया, तो वो मसल रिलैक्स भी कर दे, हमारी याद शक्ति भी उस समय की कुछ ना याद रहे, पेन भी गायब कर दे. एंड दैट इज जूस, अगर उस एनेस्थेटिक एजेंट में हर चीज हो गया, भाई एमनीशिया करने का भी पावर हो गया, मसल रिलैक्स करने का भी पावर हो गया, पेन हटाने का भी पावर हो गया, देन दे आर कॉल्ड एज द बैलेंस्ड एनेस्थेटिक एजेंट. ठीक है, तो वी शुड नो हेंस व्हाट आर द स्टेप्स और हु इज द बैलेंस्ड एनेस्थेटिक एजेंट, कि भाई कौन बैलेंस्ड एनेस्थेटिक एजेंट होगा, जिनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, सो बैलेंस्ड एनेस्थेटिक एजेंट, टू रिमेंबर द स्टेप्स ऑफ बैलेंस्ड एनेस्थीसिया, आई कैन से स्टेप ऑफ बैलेंस्ड एनेस्थीसिया. वी शुड रिमेंबर द निमोनिक. You know, one of the contraceptive, it is free of cost by the government. क्या बोलते हैं guys उसको? Yes, माला N. So N is no cost, it is free of cost. So M stands for your anesthetic agent should cause muscle relaxant. A stands for it should cause amnesia. हमको ऐसा एजेंट चाहिए. A stands for and L stands for loss of consciousness. A stands for भाई कुछ दर्द वेद ना हो, मैं पता ना चले, ऐसा कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कराए, दैट इज एबॉलिशन ऑफ रिफ्लेक्स. ऑल रिफ्लेक्स एक्शन इज लॉस्ट. एंड N is no pain. No pain means analgesic. It should cause a perfect analgesia. ठीक है guys, now muscle relaxant, amnesia, loss of consciousness, abolition of reflex, no pain, ये हमारे बैलेंस्ड एनेस्थीसिया का स्टेप है. बट गाइज, देयर इज नॉट अ सिंगल एनेस्थेटिक एजेंट विच विल हैव ऑल दिस 5 प्रॉपर्टीज. ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई एजेंट नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं actually there is no existence of a balanced anesthetic drug. करेक्ट. so, जैसे कि हमारा कोई बैलेंस्ड हेल्दी डाइट नहीं होता कि भाई एक ही खाने में सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, हमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा. सिमिलरली देयर इज नो सिंगल बैलेंस्ड एनेस्थेटिक एजेंट. यू शुड नो, प्लीज रिमेंबर, नो सिंगल बैलेंस्ड एनेस्थेटिक एजेंट वी हैव. ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा गाइस, हमको तो भाई चाहिए ना, बट जनरल एनेस्थीसिया चाहिए कि नहीं चाहिए? यस. सो वी हैव टू हैव मिक्सचर ऑफ 2 or 3 एनेस्थेटिक एजेंट. सो मसल रिलैक्सेंट करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा व्हाट गाइस? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट लाइक ट्यूबोकुरेर. सो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, सो इट इज डन बाय skeletal muscle relaxant. लिखते जाओ, this is very important. Amnesia guys is done by the most common CNS depressant and that is called as the benzodiazepines. Benzodiazepine guys, एक नाम मैं बताता हूँ, like diazepam, lorazepam. ठीक है, loss of consciousness and abolition of reflex, it is done by जो हम लोग आज पढ़ेंगे guys, that is general anesthetic drug.
So general anesthetic drug will cause these two things, that is they will cause loss of consciousness and they will cause सारे रिफ्लेक्स को लॉस कर देगा, मसल मतलब अच्छा बीपी ये सब को एकदम मेंटेन रखेगा, एवरीथिंग बीपी हार्ट रेट रिफ्लेक्स को लॉस भी कर देगा, ठीक है. एंड नो पेन इट इज कॉज्ड बाय द ओपियोइड्स, ठीक है. सो ओपियोइड मोस्टली वी यूज फेंटेनिल लाइक ड्रग, ठीक है. सो दिस आर योर मिक्सचर ऑफ ड्रग विच विल कॉज बैलेंस एनेस्थीसिया. नाउ गाइस बट हम लोग किस टॉपिक पे हैं? अपने जनरल एनेस्थीसिया पे. तो हमको पता होना चाहिए स्टेप्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया. भाई कैसे जनरल एनेस्थीसिया का स्टेप बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा. अंडरस्टूड? ओके. सो गाइस गिव द हेडिंग स्टेप्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया. देखो वी आर स्टिल नॉट ऑन आवर फार्मा ड्रग्स, बट देखो कभी कभी एग्जाम में दे कैन आस्क, दिस इज अ शॉर्ट नोट, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बैलेंस एनेस्थीसिया, स्टेप्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, आल्सो क्या दे कैन आस्क इन वाइवा, ठीक है. तो यू शुड नो सम अदर पॉइंट्स अदर देन ओनली द ड्रग्स, ठीक है. नाउ बैलेंस स्टेप्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया अगर देखेंगे गाइस, जस्ट रिमेंबर हाउ टू रिमेंबर इट, जस्ट रिमेंबर डैम्स. These are the steps, these are the 4 steps. देखो बट ये सीक्वेंस में नहीं लिखा है, बस निमोनिक के लिए आपको याद करवा रहा हूं. डैम्स पहला स्टेप इज एक्चुअली स्टेप ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेप ऑफ, और वी कैन से एनाल्जेसिक स्टेज, नॉट स्टेप बोल सकता हूं, नॉट दिस आर नॉट स्टेप्स गाइस, सॉरी, स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, नॉट स्टेप्स. सो स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया. सो ए फॉर योर एनाल्जेसिक स्टेज. There is no pain but the BP, the heart rate, the blood pressure, ठीक है. BP, heart rate, your respiratory rate is maintained. Patient का ये सब maintain रहेगा but pain नहीं रहेगा, and we need this. This stage is mainly used in labor. Used in labor. Please remember, analgesic stage is used in labor. ठीक है. Second stage is guys D. ठीक है, ये हो गया. अब D में आते हैं stage of delirium of excitement. Now guys हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है. अब गाइस देखो पेशेंट को जैसे ही ड्रग देते हैं, आजकल जो एनेस्थेटिक ड्रग दिया जाता है दैट इज मॉडर्न एनेस्थेटिक ड्रग, उसमें देते मान ही पेशेंट का एवरीथिंग, रिस्पॉन्स एकदम लॉस, एमनेशिया, एवरीथिंग, एनालिसिस सब एक साथ ही हो जाता है. तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं भाई ये कौन से स्टेज में है, एनालिसिक कि डिलीरियम कि नेक्स्ट स्टेज कि नेक्स्ट स्टेज. तो ऐसा कौन सा ड्रग था जो बहुत स्लो एक्टिंग था? यस, द फर्स्ट जनरल एनेस्थेटिक व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड वाज ईथर. सो ईथर को एक साइंटिस्ट ने किसी पेशेंट में दिया, तो साइंटिस्ट वाज गुडल्स. So Goodals he described by giving ether we can differentiate 4 stages of general anesthesia, ठीक है. because ether is very slow acting drug, इसलिए वो आजकल यूज नहीं होता है. बट एनेस्थीसिया को अगर मुझे डिस्क्राइब करना है, देखना है स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया को, सो देयर इज अ ड्रग दैट इज ईथर व्हिच वाज गिवन बाय गुडल्स. सो इट इज कॉल्ड गुडल स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है. तो सेकंड स्टेज गाइस क्या मैंने बताया? स्टेज ऑफ डेलीरियम और एक्साइटमेंट. नाउ ईथर गाइस क्या करता होगा? पहले सीएनएस को डिप्रेस करता होगा. सो व्हेन इट डिप्रेसेस इट inhibits, or we can say yes, it inhibits the neurons, ठीक है. so while inhibiting the neurons, कभी कभी क्या हो जाता है जब कोई भी लोग पहले इनहिबिट करते हैं उसके बाद उनका एक्साइटमेंट चालू हो जाता है, कुछ समय के लिए देयर इज एक्साइटमेंट. सो इट विल कॉज एबनॉर्मल मूवमेंट्स, it will cause cough, it will increase heart rate, it will increase blood pressure, it will increase your respiratory rate. So do we want this in your we can say to the patient? No. So this stage is not required, so this we don't need in the patient. So this is, but ether अगर देंगे तो हमको दिखेगा ये स्टेज कि एबनॉर्मल मूवमेंट चालू हो गया है पेशेंट में, हार्ट रेट बढ़ गया है इन द सेकंड स्टेज व्हेन द पेशेंट रीचेस. नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेज एंड दैट इज कॉल्ड एज
the S, which is called as the stage of surgical anesthesia. Okay, now stage of general surgical anesthesia matlab there will be loss of reflex action. Reflex action is loss, but the BP, heart rate, respiratory rate is maintained, and patient has loss of consciousness. ठीक है, that is loss of reflex action क्यों है? Because there is loss of consciousness, but patient का vitals जो है क्या है? Stable, and this is the ideal stage of surgery, guys. So which is the ideal stage of surgery? It is the stage of surgical anesthesia जो हम लोग करते हैं. Understood? Okay, ठीक है. And it has mainly 4 planes. अलग अलग stages होते हैं भाई, अलग अलग प्लेन में अलग अलग रिफ्लेक्स एक्शन लॉस होंगे, अलग अलग एवरीथिंग विल बी डन. सो द सर्जिकल एनेस्थीसिया हैज 4 प्लेन्स. देयर विल बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बट द बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट इज गाइस मेंटेन्ड. अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेज, एंड द लास्ट स्टेज इज ADS, which is M. The only M is remaining, and is stage of medullary paralysis. So guys, if there is excess dose of anything, it will cause respiratory depression. In the medulla we have respiratory center, so respiratory center depression, and the patient can die. Yes or no? So we don't want this stage, so not required. This stage is not for us. Understood? So these are the guys 4 stages of general anesthesia. कौन से साइंटिस्ट ने दिखाया ये? Goodell's by giving ether. So it is a Goodell stage of general anesthesia remembered by DAMS, DAMS, but हम लोग उसको अलग सीक्वेंस में देखेंगे. A stands for analgesic stage. So stage of analgesia, no pain, तो used in labor, but heart rate, BP, pulse rate, respiratory rate is maintained. Stage of delirium, while inhibiting the neurons, it excites also. So excitation will lead to abnormal movements. So abnormal movement मतलब like abnormal breathing चालू हो जाएगी. ठीक है, there will be cough, there will be increased heart rate, BP, respiratory rate, but this stage is not the ideal stage to perform the surgery. Next stage is stage of surgical anesthesia. So it has 4 planes, जिसमें अलग अलग stage पे loss of reflex action होंगे. So BP, heart rate but maintain रहेगा, and patient will be unconscious, and this is the ideal stage of any surgery. And the last stage is stage of medullary paralysis. So your medulla contains respiratory center, so excess dose of any drug will depress the center, respiratory center, and the patient will die. So also this stage is not required for any surgery. Understood? So 4 stage remember by DAMS: stage of analgesia, stage of delirium, stage of surgical anesthesia, and stage of medullary paralysis. ठीक है? ओके, अब हम लोग आ जाएंगे हमारे प्रॉपर जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स पे. सो क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग. Okay, so as I have already told you, it is classified guys into 2 main types. First is by which route it is given, the main classification, and that is inhalational general anesthetic drug. So we have first inhalational general anesthetic drugs. ठीक है, and the second one is the intravenous general anesthetic drugs. ठीक है guys. Now this guys, inhalational is again classified into the inhalational gases which are used as inhalational general anesthetic. And to remember this, just remember NEX, and that is nitrous oxide, which is N2O, E for Entonox, and X for xenon. ठीक है guys, so these are the 3 inhalational gases. ठीक है, not very commonly used, they are not used actually very commonly, but second one is which are coming in liquid form, but they are volatile liquid, so they are heated, so they will be used as gas only, inhaled as gas, but they are volatile liquid actually when it is
kept in some cylinder or anything. ठीक है ना? How to remember this? Just remember he is dim CTC. Just remember he is dim CTC. So this is your volatile liquid which are used as inhalational. So he stands for halothane, E for ether, I for isoflurane, S for sevoflurane, D for desflurane, again I for isoflurane just for mnemonic, M for methoxyflurane, C for cyclopropane, propane, T for trilene, and this C for chloroform. ठीक है, and one more is E for N-fluorine. ठीक है guys, so this is your volatile liquid. ठीक है, now intravenous general anesthetic हम लोग अगर देखें, just remember about डोबी. डोबी है क्या? Even जेठालाल says to दयाबेन, डोबी है क्या? डोबी. So D stands for the one which causes dissociative anesthesia. Dissociative anesthetic agent. And one we have one very common, that is ketamine. O stands for the opioid analgesic, and that is most common is fentanyl. B stands for, guys, yes, benzodiazepine. And we have example like diazepam, lorazepam, oxazepam. We have many. I stands for, guys, the one which induces the general anesthesia. So that is the inducing agents. Now how to remember the inducing agents? इंट्रावेनस को कैसे हमने याद रखा? डोबी से. ठीक है. नाउ इंड्यूसिंग एजेंट, गाइस, हाउ टू रिमेंबर दिस? जस्ट रिमेंबर इंड्यूसिंग एजेंट बाय FMT paper, easy. F stands for phos, propofol. M for methohexitone. T for iopentone. P for propofol, and E for etomidate. Etomidate. Understood, guys? So this is your intravenous anesthetic agent. So याद रखना है, by DOBI we have the main 4 class. D, that is dissociative anesthesia. कौन कॉज करता है, क्या है, इसे हम लोग देखेंगे, डोंट वरी. कीटामीन, ओपियोइड एनाल्जेसिक, फेंटेनिल, बार्बिचुरेट्स, दैट इज सॉरी नॉट बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन, दैट इज डायजेपाम, लोराजेपाम. एंड इंड्यूसिंग एजेंट को कैसे याद रखना है? एफएमटी पेपर, इजी. फॉस प्रोपोफॉल, मिथोएक्सिटोन, थायोपेंटोन, प्रोपोफॉल एंड इटोमिडेट. इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेसिया, उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? वी हैव इनहेलेशनल गैस बाय नेक्स, नाइट्रस ऑक्साइड, एंटेनॉक्स, जेनॉन. एंड वोलाटाइल लिक्विड को कैसे याद रखना है? ही इज डिम CTC. H for halothane, ether and fluorine, isoflurane, sevoflurane, desflurane, methoxyflurane, cyclopropane, trilene and chloroform. ठीक है, ये क्लास आपको याद रखना है, बिकॉज वो क्लास भी लिखने के लिए 2 मार्क का आता है, दैट क्लासिफाई द जनरल एनेस्थेटिक ड्रग. अंडरस्टूड? सो प्लीज रिमेंबर बाय mnemonics. Okay, guys, now we understood the classification. Now just remember the mechanism of action. The most important is mechanism of action of your general anesthetic drugs. ठीक है, तो हमें को पता होना चाहिए भाई हमारे ड्रग्स के क्या मैकेनिज्म है. तो देखो 2 ही मैकेनिज्म होगा, या वो इनहिबिटरी न्यूरॉन को बढ़ाएगा या एक्साइटेटरी न्यूरॉन को कम करेगा. बिकॉज क्या करना है उसको भाई एमनीशिया करना है, लॉस ऑफ रिस्पॉन्स करना है, अनकॉन्शियसनेस करना है. तो क्या करेगा वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर तो CNS को डिप्रेस करेगा या एक्साइटेटेड न्यूरॉन को इनहिबिट करेगा. सो आइदर इट विल एक्टिवेट और इंक्रीज इनहिबिटरी न्यूरॉन, second it will inhibit
एक्साइटेटरी न्यूरॉन. सो इंक्रीज करेगा इनहिबिटरी न्यूरॉन को या डिक्रीज करेगा एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स को. Now we should know which are the inhibitory neurons present in the brain. So please remember the first very common is your GABA. So it activates a channel in GABA and that is GABA chloride channel. So chloride channel को activate कर देगा. So chloride channel open होगा. So it will cause hyperpolarization of neuron, which will cause the decreased conduction and it will depress the CNS, then thereby causing the further response of general anesthesia. Second one more we have inhibitory neurotransmitter and that is it also activates glycine chloride channel, same as your GABA. So again it will cause hyperpolarization, so the conduction will be decreased, so there will be loss of consciousness. So it will activate glycine chloride channel. Also it will open potassium channel and that potassium channel is called as the TREC channel. ठीक है, TREC channel का नाम होता है 2-pore potassium channel. सो पोटेशियम चैनल भी गाइस अगर ओपन हो गया बाहर निकलेगा, इट विल कॉज इफ्लक्स. इफ्लक्स की वजह से देयर इज हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन. सो गाइस याद रखो 3 मैकेनिज्म है ऑफ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग हाउ दे विल एक्टिवेट द इनहिबिटरी न्यूरॉन. पहला गाबा को एक्टिवेट करेगा बाय ओपनिंग द क्लोराइड चैनल which will cause hyperpolarization of neuron, thereby the conduction is decreased and thereby there is CNS depression. So, second is activating the glycine chloride channel. Chloride channel glycine activate करेगा, open करेगा, again hyperpolarization which will cause decreased conduction. And the last is by opening K plus channel, it will move out the K plus outside, it will cause efflux, thereby there is hyperpolarization, again there is decreased conduction. ठीक है. Now by decreasing excitatory neuron and the most common is that by inhibiting glutamate receptor. Common is your NMDA. So it is NMDA, that is N-methyl D-aspartate is your glutamate receptor. ठीक है, through which it inhibits your glutamate receptor. So it is NMDA antagonist. So please remember your maximum general anesthetic drug, either they will do this or they will do this or they will do both. बहुत सारे मैक्सिमम वी कैन से कि जनरल एनेस्थेटिक ड्रग जो भी हैं वो दोनों मिक्सचर करते हैं, वो इनहिबिट भी करेंगे और डिक्रीज कर इनहिबिटरी न्यूरॉन को बढ़ाएंगे और एक्साइटेड न्यूरॉन को कम करेंगे. बट वी हैव थ्री जनरल एनेस्थेटिक ड्रग व्हिच विल they are mainly NMDA antagonist, and they are ketamine, please remember, nitrous oxide that is N2O and xenon. प्लीज रिमेंबर गाइस, ये तीन जो हैं ये हमारे मेन क्या हैं? दे आर द मेन विच विल इनहिबिट द एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स, दैट इज दे आर एनएमडीए एंटागोनिस्ट. बट और सारे जितने भी बचे हुए हैं दोनों, वो सब दोनों पे काम करेंगे. वो इंक्रीज करेंगे इनहिबिटरी न्यूरॉन को या डिक्रीज करेंगे एक्साइटेटरी न्यूरॉन को. सो दे ऑल जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स have overlapping action. So दोनों काम करेंगे. overlapping action मतलब वो दोनों काम करते हैं, ये भी और ये भी. But we have three, that is ketamine, nitrous oxide and xenon. They are mainly NMDA antagonist. Understood this much? So हमारा मैकेनिज्म आपको समझ गया? Understood? Okay. अब हम लोग आते हैं कुछ खास चीज पे. देखो सारे जनरल एनेस्थेटिक ड्रग जो हैं वो क्या कर रहे हैं भाई? वो कॉन्शियसनेस को लॉस कर रहे हैं, अलग अलग वे में कर रहे हैं. ठीक है, बट हाउ दे विल डू, भाई कितना जल्दी काम करेंगे, कौन कितना ज्यादा पोटेंट है, कौन कितना कम पोटेंट है, कौन जल्दी रिकवरी कराएगा या जल्दी ऑनसेट कराएगा, उसके लिए वी शुड नो देयर आर टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग. इन दोनों प्रॉपर्टी पे ही हमारे जनरल एनेस्थेटिक ड्रग की ये डिपेंड होती है भाई कि भाई उसकी पोटेंसी कैसी है और उसका ऑनसेट कैसा है और रिकवरी कैसी होती है पेशेंट में. सो दिस प्रॉपर्टी जो हम लोग अभी देखेंगे, दे आर वन ऑफ द मोस्ट, और वी कैन से दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ all general anesthetic drugs. So give the heading, the properties of general anesthetic drug. Okay.
So give the heading properties of general anesthetic drug. Now the first property is called as the minimum alveolar concentration. Minimum alveolar concentration. That is MAC. Now and second लिख लेते हैं. Second is called as the blood gas partition coefficient. ठीक है. सो ये हमारे दो मेन प्रॉपर्टी हैं ऑफ ऑल दी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग एंड दिस इज अ डेफिनेटली अ क्वेश्चन. देखो ये बहुत आसान है, ठीक है, आपको समझने की जरूरत है बिकॉज ऑल दी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग विल हैव दिस टू प्रॉपर्टी. ठीक है, और ये प्रॉपर्टी उनका ये डिसाइड करता है भाई उनकी पोटेंसी कैसी है, उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन कैसा है. ठीक है, इसीलिए ये तो आपको आना ही चाहिए जनरल एनेस्थीसिया में बिकॉज दे आर द फेवरेट वाइवा क्वेश्चंस. ठीक है, अब हमको पता होना चाहिए दैट मिनिमम अल्वेओलार कॉन्सेंट्रेशन इट डिसाइड्स द पोटेंसी ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक ड्रग. सो डिसाइड गाइस लिख लेना, इट डिसाइड्स द पोटेंसी ऑफ द ड्रग एंड दिस डिसाइड्स द ऑनसेट ऑफ एक्शन. ठीक है, जितना जल्दी ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा उतनी जल्दी रिकवरी पेशेंट की होगी. ठीक है, ऑनसेट एंड रिकवरी ऑफ पेशेंट, ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड रिकवरी ऑफ पेशेंट. अब हमको पता होना चाहिए दोनों होते क्या हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे गाइस. पहले क्या देखेंगे, MAC, देन वी विल सी द ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट, दैट इज BG पार्टीशन कोएफिशिएंट. सो व्हाट इज मिनिमम एल्वेओलार कंसंट्रेशन? इट इज नथिंग बट इट इज द कंसंट्रेशन of general anesthetic drug present in alveoli which causes unresponsiveness guys, which causes unresponsiveness. वही मेन काम है उसका, unresponsiveness in surgical incision in 50% of patient. ठीक है, so it is the concentration of guys general anesthetic drug which is present in alveoli. So concentration means percentage, it is mainly in percentage. So percentage of general anesthetic drug present in alveoli which will cause unresponsiveness to the surgical incision. ठीक है, or we can say to the in surgical incision, to the surgical incision in 50% ऑफ द पेशेंट. ठीक है, सो याद रखो अल्वेलाई के अंदर जितना कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होगा ऑफ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग, ठीक है, विच कॉसेस द unresponsiveness to the surgical incision in 50% of the patient is called as the minimum alveolar concentration guys. Now please remember guys, for example if कोई ड्रग है जिसका 100% मैंने, ठीक है, 100% ड्रग ले लिया, ठीक, किसी भी जनरल एनेस्थेटिक का 100% हमने जनरल एनेस्थेटिक ड्रग लिया ना, उसका ना गाइस जस्ट रिमेंबर 25% कॉन्सेंट्रेशन से प्रेजेंट हुआ एल्वेलाई में. कितना आया गाइस? 25% एल्वेलाई में आया. कितना आया? 25% ही एल्वेलाई में. अब ये उस ड्रग का कितना परसेंट है एल्वेलाई में? 25%. बट वो ड्रग भाई पूरा प्रेजेंट है, ओवरऑल मॉलिक्यूल हमने लिया उसका, बट कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा? 25%. बट इट विल कॉज कॉन्शियसनेस इज 50% ऑफ इंडिविजुअल. करेक्ट, समझ रहे हो? तो इसका MAC वैल्यू क्या होगा गाइस? कितना परसेंट है? 25%. 25 मींस वी कैन से 0.25%. 25 concentration means 0.25% is the MAC value of this. ठीक है, अब गाइस फॉर एग्जाम्पल कि सेम सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया 100% ऑफ एनी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग, अब वो ना समझो 75% कॉन्सेंट्रेशन उसका प्रेजेंट है, मतलब उस ड्रग को 75% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कहां पे? एल्वेलाई में. तब वो क्या कॉज करेगा? 50% पेशेंट में अनकॉन्शियसनेस. समझ रहे हो? तो इसका कितना MAC होगा गाइस? MAC ऑफ दिस विल बी 0.75%. ठीक है, सो MAC इज
0.75%। नाउ अब मुझे बताओ गाइस, 0.25% कॉन्सेंट्रेशन ये ड्रग का एमएसी है, ठीक है, ये ड्रग का कितना एमएसी है 0.75, सो ये ड्रग का सिर्फ 0.25% कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो कितने परसेंट में अनकॉन्शियसनेस कर रहा है 50%, बट इस ड्रग का कितना हो रहा है 0.75, तब जाके वो 50% लोगों में अनकॉन्शियसनेस कर रहा है। नाउ गाइस फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस ड्रग इज ए, दिस ड्रग इज बी, सो हु इज मोर पोटेंट, हमारा हमने क्या बताया था, मिनिमम मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन क्या डिसाइड करता है, पोटेंसी ऑफ दैट ड्रग, सो वी कैन से ए इज मोर पोटेंट देन बी, प्लीज रिमेंबर ए इज मोर पोटेंट देन बी, मतलब जितना ज्यादा मिनिमम अल्वेओलार कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा मिनिमम अल्वेओलार कॉन्सेंट्रेशन होगा, पोटेंसी उतनी ज्यादा नीचे जाएगी, सो वी कैन से दैट potency, or we can say MAC is inversely proportional to the potency of the drug. So more is the MAC, less is the potency. Less is the potency मतलब dose. So less is the dose, less dose of drug means more potent drug. MAC की वैल्यू के ऊपर समझ रहे हो, ज्यादा डोज ऑफ ड्रग है तो इट विल बी लेस पोटेंट डिपेंडिंग ऑन द MAC वैल्यू, यू आर अंडरस्टैंडिंग, कम डोज में ही वो ज्यादा काम कर दे रहा है, सो इट इज मोर पोटेंट, सो इट हैज लेस MAC, सो मोर MAC less potency, less MAC more potent drug. So please remember कि MAC decides the potency of the drug. If any drug has less MAC value, it has more or it is more potent. If it has more MAC value, it is less potent. हमने दो एग्जांपल देखा A और B का। A ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन एल्वेओलाई में 25% था, तो उनका MAC वैल्यू आया 0.25%। 25% मतलब कितना होता है ना, यू कैन सी 25 by 100, इसका concentration is 0.25. So 0.25 is the MAC value of your A drug, but इसका MAC value कितना है 0.75, but दोनों ने कितने लोगों में अनकॉन्शियसनेस करवाया 50% लोगों में, but MAC किसकी कम है, इसका लेस डोज है तो भी उसने 50 लोगों में करवा दिया, इसका ज्यादा है तब उसने 50 में करा दिया, सो योर MAC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंसी। अंडरस्टूड दिस मच? ओके, हम लोग अब आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड दैट इज ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट। सो सेकंड प्रॉपर्टी गाइस ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक ड्रग इज ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट। Now what it decides guys, मैंने क्या बोला था, it decides the onset of action. So onset of action, so blood gas partition decides the onset of action. Now please remember guys, alveoli से ड्रग कहां जाएगा, ब्लड में, ब्लड से कहां जाएगा, ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में ही काम करना है उसको अपना, yes. So when the drug reaches in blood, so when drug reaches in blood, so it will be in soluble form, ठीक है, और it will be in non insoluble form, that is bubble form, that is gaseous form. याद रखो guys, so when any general anesthetic drug, when inhalational है, volatile liquid है, anything, when they are taken through inhalation, they will reach into the blood, ठीक है, from the blood they will be in two form, either they will be in the soluble form, in the blood they are insoluble form, and they will be insoluble form or the gaseous form. Now out of this two, please remember it is the gaseous form, it is the gaseous form, it is the gaseous form which will reach brain to cause unconsciousness, मतलब अपना काम कराएगा। So if your gaseous, मतलब if your anesthetic agent is in the gaseous form in the blood, so it is the one which will go in the what, in the brain, and it will cause its action. So onset of action उसका क्या होगा, जल्दी होगा, तो जितना जल्दी वो काम करेगा पेशेंट की रिकवरी भी उतना फास्ट होगी। सो प्लीज रिमेंबर, सो ब्लड गैस, सो ब्लड में वी हैव वन सोल्यूबल फॉर्म, वी हैव गैस, सो दोनों का अगर मैं क्या करूं, प्रपोर्शन देखूं, सो इट इज कॉल्ड ब्लड गैस प्रपोर्शन और पार्टीशन कोएफिशिएंट।
सो हम लोग बोल सकते हैं BG पार्टीशन कोएफिशिएंट. So please remember now if this BNG is more, BNG more कब होगा? When the liquid B मतलब हम बोल रहे हैं this form, the soluble form is more and the insoluble form is then, ठीक है, जो भी होगा अगर ये ज्यादा होगा, so what will happen? If BG is more, the drug has less or we can say late onset of action. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? Yes. So if B is more means the drug more in soluble form, soluble form वाला तो जाएगा ही नहीं ब्रेन में, ज्यादा जल्दी काम ही नहीं करेगा, ठीक है. So more BG means the late onset of action, but if the BG is less, so the drug has early onset of action. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो वो ड्रग के दो फॉर्म हो गए, जो भी ड्रग लिया गया थ्रू इनहेलेशन उसके दो फॉर्म में ड्रग आ जाएगा, एक सोल्यूबल फॉर्म में एक इनसोल्यूबल फॉर्म में. उसका इनसोल्यूबल फॉर्म बहुत सारे ड्रग का क्या होगा, ठीक है, ज्यादा, और वो पहले जाएंगे. अगर सोल्यूबल फॉर्म ज्यादा है सो उनका लेट ऑनसेट क्या होगा, एक्शन लेट ऑनसेट होगा. अंडरस्टूड? सो लेस बीजी मींस अर्ली ऑनसेट ऑफ एक्शन, सो अर्ली रिकवरी ऑफ पेशेंट. अर्ली, अच्छे से लिख देता हूं, सॉरी, लेस बीजी इज अर्ली ऑनसेट ऑफ एक्शन, दैट इज अर्ली रिकवरी ऑफ पेशेंट. And more BG is late onset of action means late recovery of patient. So please remember blood gas partition coefficient means again same as, ठीक है, कि अगर ज्यादा होगा BG so late onset of action, less होगा means early onset of action. Understood? अब हमको गाइस पता होना चाहिए भाई कौन से ड्रग हैं इनहेलेशनल में जिसका BG ज्यादा है या लेस है, जिसका दैट इज MAC ज्यादा है या कम है, कौन सबसे पोटेंट है, कौन लेस पोटेंट है, किसका जल्दी ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, किसका लेट ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा. तो हम लोग एक टेबुलर फॉर्म बनाने जा रहे हैं, उसमें एवरीथिंग विल बी रिटन. ओके, ठीक. So guys, we understood the classification of general anesthetic drug and also we understood the main two properties of general anesthetic drug. The first is the minimum alveolar concentration and the second is the blood gas partition coefficient. ठीक है, हमारा minimum alveolar concentration क्या decide करेगा? Less is MAC, more potent is drug, more is MAC, less potent is drug. Similarly, BG partition coefficient क्या decide करेगा? If the BG value is what? More means the onset of action is less. If the BG value is less means the drug is insoluble, it is gaseous and the onset is fast. ठीक है, so उसी के basis पे we have made a table of the inhalational anesthetic drug mainly. ठीक है, जो भाई because inhalationally वो हैं जो through inhalational जाएंगे, है ना, हमारा इंट्रावेनस तो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, तो उनको ये इससे से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, सो वी आर मेनली फोकसिंग ऑन दिस इज बेरली टू दी फॉर दे आर पर्टेनिंग टू दी इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक ड्रग. ठीक है, सो वी हैव द ड्रग्स ऑन दिस कॉलम, वी हैव द निमोनिक, द ड्रग्स, the MAC value and the BG partition coefficient. So how to remember the drug of this? You already know, matlab it is in chronological order. My thighs don't cross nuts. So my thighs don't cross nuts. This is the mnemonic to remember the inhalational general anesthetic. Depending on their MAC and BG value के हिसाब से हमने बनाया है, उसमें भी mainly MAC value का है ये. ठीक है, अब M stands for guys methoxyflurane. So it is a fluorane. Fluorane means it contains the halogenated derivative that is fluoride. इसलिए जहां पे भी guys दिखे ना आपको fluorane दिखे, ये मैं आपको बताना भूल गया था. Fluorane means they are fluorinated general anesthetic agent. They are fluorinated general anesthetic drug. ठीक है, they have the fluorine attached to them. ठीक है, so methoxyflurane, trialine, halothane, isoflurane, enflurane, sevoflurane, desflurane, xenon and N2O. अब अगर हम उसके MAC वैल्यू देखें, so chronology में ही बढ़ रहा है. इसका 0.16 है, इसका 0.2, 0.7, 1.15, 1.95, 2.05, 6, 33, 104. तो अगर हम ये पूरा देखें, सिर्फ ये वैल्यू, डोंट सी दिस. सो ये वैल्यू देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, हु इज द मोस्ट पोटेंट जनरल एनेस्थेटिक ड्रग अमोंगस्ट ऑल दिस? सो जिसका सबसे कम लेस MAC वैल्यू, मोर पोटेंट ड्रग हु हैज अ लेस MAC वैल्यू, इट इज 0.16. सो methoxyflurane guys, please note it down, it is the most potent general anesthetic drug. ठीक है,
आप ध्यान से देखना, सब नाइट्रस ऑक्साइड N2O 104%, ठीक है भाई। एल्वुलाई में 100% था, वो 104% है, तो मतलब वो एनेस्थेटिक एजेंट वैसे ज्यादा यूज भी नहीं करते हम लोग, ठीक है। सो एज N2O को, सो N2O इज द लीस्ट पोटेंट जनरल एनेस्थेटिक ड्रग। अंडरस्टूड गाइस। अब अगर हम लोग देखें फ्लोरेन, फ्लूरेन, जितने भी फ्लोरेन है उनमें हमारा सबसे ज्यादा एमएसी वैल्यू किसका है गाइस? इट इज डेस्फ्लोरेन। सो इट इज द लीस्ट पोटेंट फ्लोरेन इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक ड्रग। अगर एमसीक्यू में है विच इज द लीस्ट पोटेंट फ्लोरेन जनरल एनेस्थेटिक और इनहेलेशनल एनेस्थेटिक ड्रग, इट इज डेस्फ्लोरेन, ठीक है। सबसे कम कि कौन से फ्लोरेन का अगर आप देखो, इट इज 0.616 मिथॉक्सीफ्लोरेन, फ्लोरेन में भी सबसे पोटेंट है और ओवरऑल भी मोस्ट पोटेंट है। अब हम लोग आते हैं बीजी पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यूज पे, विच डिसाइड्स द स्पीड ऑफ ऑनसेट ऑफ दैट ड्रग एज वेल एज द रिकवरी ऑफ पेशेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया है गाइस, जेनॉन, जेनॉन जो सेकंड लास्ट था उसको सबसे ऊपर किया है। जेनॉन के बाद क्या है? डेस्फ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन के बाद N2O को लाया, N2O के बाद आप सीक्वेंस में आओ, सिवोफ्लोरेन, एन-फ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, हैलोथेन, ट्रायलीन, मिथॉक्सीफ्लोरेन। आप सीक्वेंस में पहले इनको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर आप देखो लाइन से सीक्वेंस में ही ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। अब इन सभी में द लीस्ट वैल्यू ऑफ बीजी, बीजी अगर लेस हुआ मतलब द ड्रग इज इनसोल्युबल एंड इट हैज मोर वी कैन से ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी होगा। सो जेनॉन का गाइस अगर आप देखो हमारा बीजी कोएफिशिएंट वैल्यू इज 0.14%, और ठीक है और लोगों का वैल्यू नहीं लिखा है बट हमने इतना आपको जानना काफी है, क्या है 0.14, एंड दिस इज द मोस्ट or we can say the fastest acting general anesthetic drug. So Xenon, please guys remember it is the fastest acting general anesthetic drug. अब अगर हम देखें फ्लोरेन में कौन सा है ड्रग जो सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग है, इट इज डेस्फ्लोरेन विच इज फास्टेस्ट एक्टिंग फ्लोरेन। अब हम लोग आते हैं मिथॉक्सीफ्लोरेन, मिथॉक्सीफ्लोरेन इज स्लोवेस्ट एक्टिंग फ्लोरेन बट इट इज द मोस्ट पोटेंट वन, ठीक है। एमएसी वैल्यू उसका सबसे कम है तो यहां मोस्ट पोटेंट है, बट भाई उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन वेरी स्लो, इट इज वेरी स्लोवेस्ट एक्टिंग फ्लोरेन, इसलिए यूज नहीं होता ज्यादा, ठीक है। ईथर अगर हम देखें गाइस, ईथर का वैल्यू 12 है, सभी का वैल्यू 0.14, इसका सबसे कम, इसके अब थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बट इसका कितना ईथर का 12। सो ईथर इज स्लोवेस्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक ड्रग, इसीलिए जब ईथर दिया जाता है तो आप आराम से स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेसिया हमने चारों देख लिया था बाय द गुडल स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग। सो ईथर कौन है भाई? ईथर इज द गाइस स्लोवेस्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक। हु इज द मोस्ट पोटेंट जनरल एनेस्थेटिक ड्रग? इट इज द मिथॉक्सीफ्लोरेन। हु इज द स्लोवेस्ट acting general anesthetic drug guys? It is the ether. Who is the most potent fluorine? Yes, it is methoxyfluorone. Who is the least potent of fluorine? Desflurone. Who is the fastest acting fluorine? That is desflurane. And who is the most fastest acting general anesthetic drug? It is Xenon because it has the BG value 0.14. So ये guys समझ गया, this table is very very important because MCQ थोड़े थोड़े यहां से आ सकते हैं, तो आपको by mnemonic you should remember my thighs don't cross nuts. So please note it down, this table is very very important. Please आप लोग ये note कर लो, ठीक है। We understood the MAC value as well as the BG value, उसके हिसाब से who is the most potent anesthetic agent, that is inhalational anesthetic agent, who is the most और मतलब स्पीड, who has the most onset of action, जिसका सबसे अच्छा होगा, किसका सबसे कम होगा, who is the least potent, ठीक है guys। Now one more thing in inhalational general anesthetic drug guys, we should know that there are two things we should know about general before giving the your inhalational anesthetic drug to the patient, that since they are inhalational one, so they should be stored somewhere, yes or no? So the inhalational general anesthetic drug, they are stored in cylinders, so we have different cylinder code, ठीक है। they can come as MCQ and also they have some pin index safety system. pin index safety system guys क्या बताता है? that the correct cylinder is attached to the correct outlet. भाई सिलेंडर अगर करेक्ट है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है तो उसका एक आउटलेट बना होगा, उन लोगों पे एक पिन इंडेक्सिंग लिखा होगा कि भाई ये ऑक्सीजन का सिलेंडर इसी पिन के साथ अटैच होना चाहिए, बिकॉज इट विल अवॉइड मिस कनेक्शन, ठीक है। इट कैन अदरवाइज देयर कैन बी
फेटल इफेक्ट ऑल्सो, अगर गलत सिलेंडर गलत आउटलेट में अटैच हो गया, सो इसलिए प्रिकॉशन के लिए सिलेंडर के कलर्स होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, भाई ये गैस इस सिलेंडर में है, एंड देयर इज पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम टू अवॉइड द मिस कनेक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड द गैस आउटलेट। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा पता होना चाहिए इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, कि भाई सिलेंडर कौन से कलर का कौन से गैस का होगा, एंड उसमें पिन इंडेक्सिंग सिस्टम नंबर लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड पिन इंडेक्सिंग सिस्टम सेफ्टी सिस्टम। अब वी शुड ड्रॉ अ टेबल विच विल शो भाई सिलेंडर कौन से कलर का है एंड द पिन इंडेक्सिंग सिस्टम सेफ्टी सिस्टम। ठीक, ओके सो गाइस, सो वी शुड नो भाई कौन सा इनहेलेशनल ड्रग्स, दिस इज योर इनहेलेशनल एनेस्थेटिक ड्रग, कौन सा इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक ड्रग कौन से कलर सिलेंडर में है, एंड पिन इंडेक्सिंग सिस्टम उसकी क्या है। सो वी हैव, देखो ये हमने ज़्यादा देखा नहीं था क्लासिफिकेशन में, बट दे आर अवेलेबल, एयर, ऑक्सीजन, ये वी हैव सीन N2O, एंटोनॉक्स, CO2 एंड साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, CO2 के दो कॉन्सेंट्रेशन वाले होंगे, लेस देन 7.5%, मोर देन 7.5%। ठीक है, अब कलर कोडिंग ऑफ सिलेंडर, एयर का इट इज ग्रे बॉडी, ब्लैक और व्हाइट शोल्डर, इसका ब्लैक बॉडी व्हाइट शोल्डर, N2O का ब्लू कलर। एंटोनॉक्स गाइस दो चीज का मिक्सचर है, प्लीज रिमेंबर इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, 50-50% दोनों का रहता है। सो ब्लू बॉडी रहेगा और व्हाइट शोल्डर रहेगा, बिकॉज ऑक्सीजन हैज व्हाइट शोल्डर, तो ऐसे आपको याद रखना है। सो ब्लू बॉडी व्हाइट शोल्डर, CO2 ग्रे, चाहे वो लेस देन 7.5% कॉन्सेंट्रेशन हो, मोर देन 7.5, साइक्लोप्रोपेन इज ऑरेंज। ठीक है, ओके, अब पिन इंडेक्सिंग सिस्टम ग्रे। अब अगर ध्यान से देखो सीक्वेंस बढ़ ही रहा है, 1-5 नंबर बढ़ रहे हैं, 2-5, 3-5, 7। अब यहां पे थोड़ा सा अलग हो गया है, अब अगर लेस देन 7.5 कॉन्सेंट्रेशन है, सो सेफ्टी इंडेक्स, सेफ्टी इंडेक्स इज 1.6, मोर देन 7.5 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इट इज 2.6, एंड साइक्लोप्रोपेन का इज 3.6। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, जस्ट सी इट, you can remember easily. So this is what is the color coding of cylinder for anesthetic drug, mainly the inhalational general anesthetic drug and the pin indexing safety system. देखो guys, ये viva में they can ask, in MCQ also they can ask. ठीक है, write a short note on indexing system or the color coding of cylinder of anesthetic agent. तो इतना आपको समझना है, अंडरस्टूड। अब गाइज आज का लेक्चर आई विल स्टॉप हियर ओनली, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी लॉन्ग लेक्चर। सो जनरल एनेस्थीसिया हमने क्या क्या देखा है, दैट इज अ डेफिनेशन जनरल एनेस्थेटिक ड्रग, द स्टेप्स ऑफ बैलेंस एनेस्थीसिया, स्टेप्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, देन क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया इनटू इनहेलेशनल एंड इंट्रावेनस, देन वी सॉ द मेन two properties of the general anesthetic, that is inhalational one, that is blood gas partition coefficient and the minimum alveolar concentration. Then we saw by depending on their MAC value and BG partition coefficient value कौन सा anesthetic agent most potent है, किसका जल्दी onset of action है, किसका कम है, and the last we saw the precautions of inhalational anesthetic agent, that is कलर कोडिंग कौन से सिलेंडर में इनको रखना है और उनको किस पिन इंडेक्स से आउटलेट से उनका सिलेंडर अटैच होगा ताकि मिस अटैचमेंट ना हो जाए। तो दिस इज विद दिस, ठीक है। सो वी आर स्टॉपिंग द लेक्चर हियर। तो बेसिक वी अंडरस्टूड, दैट इज 60% or 60 to 70% of the topic we understood, 60% we can say. Now the 40% of the topic, that is individual drug which are very easy of inhalational as well as the intravenous, we will be discussing in the next video, that is of tomorrow's lecture. Till then, please read this of the basic concept in general anesthetic agent. Please like this video. Please let me know whether you have liked this video. Comment on the channel so that भाई और अच्छा मैं बना सकूं, कुछ अगर कमी हो जा रही है while teaching me, while giving mnemonic, so definitely I can improvise on that. So please comment करो, please like करो, please share करो to this YouTube channel of MKT, ठीक है। Till then we'll meet in the next lecture. तब तक अपना ध्यान रखिए, please keep reading, bye bye.